अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 है। दैट विल समराइज about the discussion of network layer, and we will further go on to see the next layer, which is the link layer. So in the previous lecture we have discussed about the routing protocols and routing algorithms, how the routing has been done in a hierarchical routing and in the traditional routing, or the autonomous system based routing, and how the routing protocol works within the autonomous system and between the autonomous system. And we have discussed about the IP version 4 as well. So the issue comes with the IPv4 is that the address space is assigned to be 32 bits. So IP version 4 consists of 32 bits. It can be completely allocated very soon, because 32 bits means 2 raised to power 32 possible IPs that can be generated, which are equal to around 4 billion of IP address space. So if version 4 IP is never is doesn't updated, so the IP addresses can be completely filled, because let's assume the population of world to be about 7 billion, and the number of subscribers that are using the internet are around 5 billion users. So if every user has one device, so it means 5 billion devices that are using the internet. So if 5 billion devices are using the internet, then it means IP version 4 fails here, because IP version 4 can only support up to 4 billion devices or 4 billion IP addresses. So IPv4 will basically fails if the address space doesn't increase. So in order to increase the address space, IP version 6 is utilized. It will increase the address space, and there are more motivation for IPv6 as well. First one is the forwarding or the speeding processing, बेसिकली स्विचिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम लोग IPv6 यूज़ करते हैं. दूसरा ये कि इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस की सपोर्ट को फैसिलिटेट भी किया जाता है, और जो IP वर्जन 4 है उसके अंदर कोई बैंडविड्थ या इस तरह की कोई पैरामीटर्स मौजूद नहीं थे. तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को सपोर्ट करें, जो बेसिकली डिटरमाइन करते हैं आपके पास नेटवर्क परफॉर्मेंस को. IPv6 जो है वो आपके पास डिटरमाइन करता है कि नेटवर्क किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्वालिटी ऑफ सर्विस के पैरामीटर्स होते हैं. तो IPv6 के अंदर ये ऑप्शंस भी हैं. IPv6 अगर फॉर्मेट की बात करें तो इसके अंदर जो एड्रेस स्पेस है वो आपके पास 128 बिट्स की है. सो the address space has been increased from 32 bits to 128 bits, and there are new entries in a IP header. First one is a priority. You have previously seen this field, which is the version. So in this case it will be 6, in the version 4 case it will be 4, so in this case it will be 6. The PRI field basically it will identify the priority of the packet, and then there is a flow label field. It will identify either this packet will have same flow or same data rate or same quality of service parameters as the previous packet, or it will have the different parameters. And there is a entry called the next header. It will identify the upper layer protocol for the data, which basically the TCP protocol, UDP protocol, or which type of protocol is being used for data. Then there is a hop limit or a TTL, and then you have a 128 bit address space for destination IP address and source IP, and then the data. So there are more changes. First one is the checksum change. We have removed the
it entirely to reduce the processing time at each hop. So there is no checksum in IPv6. There are also options field which are being allowed to indicate whether about the next header field, and the error controlling or the error reporting has been utilized using the ICMP version 6. So how पैकेट कैसे अब वर्जन 4 और वर्जन 6 के पैकेट कैसे आप साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, और वर्जन 4 के अंदर क्या था, तो वर्जन 4 का जो डाटाग्राम था कुछ इस तरह से था कि उसके अंदर सोर्स आईपी हेडर की फील्ड थी और सोर्स आईपी था और डेस्टिनेशन एड्रेस था, ये चीज़ें थी। दैन आईपी वर्जन 4 का यहाँ पे डाटा था। अब वर्जन 6 की बात करें तो वर्जन 6 के अंदर डाटा के अंदर ही हमने बेसिकली कुछ और चीज़ें, या उसका आईपी हेडर की बात करें तो आईपी हेडर कुछ इस तरह से बनता है कि आपके पास IPv6 के अंदर ही हम लोग IPv6 को हम लोग IPv4 के अंदर ही समा सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा कर रहे हैं कि अगर कोई V4 का पैकेट हो उसको V6 के ऊपर भेजना हो तो कैसे भेजा जाएगा, तो इस तरह किया जाएगा। ट्रांजिशन कैसे होगी IPv4 की V6 से, तो इस तरह की जाएगी कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप राउटर्स को अपडेट करें, क्योंकि अपग्रेड करना होगा राउटर का, तो मतलब नए राउटर नए सॉफ्टवेयर आपको लेने पड़ेंगे। तो कैसे राउटर ऑपरेट करेगा, जो एक IPv4 का पैकेट भी आ रहा है, V6 का राउटर V6 का भी पैकेट आ रहा है एक राउटर के ऊपर, तो कुछ इस तरह से होगा कि जो IPv4 का पैकेट है ये IPv4 का पैकेट है, ठीक है, जिसके अंदर वो सपोज़ ये जो आपका राउटर है वो V4 के पैकेट की बेस के ऊपर काम करता है। अब इसके पास V6 का एड्रेस है, तो वो क्या करेगा, तो जो V6 का उसके पास पैकेट आया उसको उसने IPv4 के जो डाटाग्राम था उसके अंदर ही अपेंड कर दिया और देन उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे टनलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कि V6 के पैकेट्स को हम लोग कैरी किया जाता है पेलोड के अंदर V4 के, और फिर V4 के जो राउटर्स होते हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरह आपके पास टनलिंग के थ्रू हम लोग V6 और V4 के दरम्यान में कंपैटिबिलिटी के इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक सर्वे अराउंड 2013 के अंदर किया गया था जिसमें बताया गया था कि कितना परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री ने अडॉप्ट कर लिया V6 को। तो ये US की है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसने सर्वे किया था। तो उसमें बताया था कि अराउंड इंडस्ट्री के 3% ऑफ द राउटर्स ने IPv6 को अडॉप्ट किया है, और गवर्नमेंट के जो राउटर्स हैं वो 11% तक कर गए हैं। तो ये इतना टाइम लग रहा है V6 को अडॉप्ट करने के लिए, वो इस वजह से साइंसदान ये कहते हैं कि तकरीबन 20 इयर्स तक लग सकते हैं V6 को कम्प्लीटली अडॉप्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको एप्लीकेशन लेवल चेंजेस करनी पड़ती हैं, इस वजह से आपके पास IPv6 को अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, ये तो हमारी डिस्कशन थी अबाउट दी नेटवर्क लेयर। अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट लेयर है बॉटम पे, वो आपके पास है लिंक लेयर, जिसको हम लोग डाटा लिंक लेयर भी कहते हैं। लिंक लेयर का प्रिंसिपल ये होता है कि इसने एक तो एरर डिटेक्शन करनी है, एरर करेक्शन करनी है, चैनल को कैसे एक्सेस करना है, मीडियम को कैसे एक्सेस करना है यूज़र्स ने, ये बताना कि मीडियम फ्री है, बिज़ी है, क्या करना है, क्योंकि जो मीडियम है वो आपके पास तमाम यूज़र्स यूटिलाइज़ करेंगे फ़िज़िकल ट्रांसमिशन करने के लिए, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए फिज़िकली तौर पे। और दूसरा ये कि यहाँ पे एड्रेसिंग होती है, जो कि मैक एड्रेसेस होते हैं, फ़िज़िकल एड्रेसेस होते हैं, और दैन इसके लोकल एरिया नेटवर्क्स में आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होती है ईथरनेट के ऊपर, वर्चुअल लैन्स होते हैं यहाँ पे। तो लिंक लेयर का अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो लिंक लेयर में क्या होता है कि इसमें हम लोग ये जो लिंक लेयर है ये आपके पास होस्ट और राउटर दोनों के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। इसको हम लोग होस्ट और राउटर को हम लोग यहाँ पे नोड कहेंगे, और जो पाथ या जो कम्युनिकेशन लिंक है उसको हम लोग बेसिकली जो दो नोड्स के दरम्यान में जो पाथ है जो कि या तो केबल होगा या वायरलेस होगा, तो उसको हम लोग लिंक कहेंगे। और जो लिंक लेयर का पैकेट या लिंक लेयर पे पैकेट तो नहीं होता, उसको हम लोग जिस नाम से पुकारेंगे वो आपके पास फ्रेम होगा, और इसके अंदर डाटाग्राम को इनकैप्सुलेट किया जाता है, ऊपर से जो पैकेट आता है उससे बनता है फिर फ्रेम।
लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स या फिजिकली एडजेसेंट नोड जो आपस में कनेक्टेड हैं उनको पैकेट्स फॉरवर्ड करना। लिंक लेयर की डिवाइसेस जो हैं आपके पास, लेयर 2 डिवाइसेस जो हैं वो आपके पास स्विचेस आते हैं। तो जो डाटाग्राम ट्रांसफ़र होंगे डिफरेंट लिंक के प्रोटोकॉल्स को, उनको डिफरेंट लिंक के ऊपर भेजा जाएगा। जैसे आपके पास आपने देखा था कि कुछ वायरलेस मीडियम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जैसे ये दो, तो इसके प्रोटोकॉल डिफरेंट होंगे। कुछ वायर्ड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसके प्रोटोकॉल डिफरेंट होंगे। कुछ लोकल एरिया को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसके प्रोटोकॉल डिफरेंट होंगे। कुछ इथरनेट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। तो जो लिंक लेयर का प्रोटोकॉल होगा वो डिफरेंट सर्विसेज को बताता है। इसकी एग्ज़ाम्पल हम लोग कुछ इस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, लिंक लेयर की अगर सर्विसेज की बात करें तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे हम लोग फ्रेम्स बनाते हैं, इंकैप्सुलेट करते हैं हेडर को। हेडर में क्या होता है, आपके पास सोर्स एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। ट्रेलर के अंदर आपके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है और फ्रेमिंग, ये फ्रेम बन जाता है। देन चैनल एक्सेस को हम लोग देखते हैं कि मतलब आपके पास चूँकि मीडियम आपने शेयर होता है, मल्टीपल यूज़र्स एक ही मीडियम को यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे वायरलेस होगा या अगर केबल होगा तो उसमें भी एक स्विच को यूटिलाइज़ करूँगा मल्टीपल यूज़र। तो उस केस के अंदर जो मीडियम है वो शेयर्ड है। शेयर्ड मीडियम को कैसे एक्सेस देना है, मतलब हर टाइम मीडियम अवेलेबल तो नहीं हो सकता, कभी कोई यूज़र कम्युनिकेट कर रहा होगा, उसको कभी कोई यूज़र यूटिलाइज़ कर रहा होगा। तो जो मीडियम है उसको कैसे शेयर किया जाएगा, तो वो उसका शेयरिंग का मैकेनिज़्म जो होगा वो आपके पास चैनल एक्सेस का जो मैकेनिज़्म है वो लिंक लेयर की सर्विस में आता है। दैन मैक एड्रेस यूज़ किया जाता है, तो जो आइडेंटिफाई करता है आपके पास फिजिकल एड्रेस डिवाइस का। दैन जो डिलीवरी ऑफ डाटा होती है बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स वो आपके पास रिलायबल होती है। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास रिलायबिलिटी का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग बिट लेवल एरर्स को चेक करते हैं और उनको फिर रिमूव करते हैं। और भी हमारे पास कुछ सर्विस है जिसमें फ़्लो कंट्रोल होता है। जो एडजेसेंट नोड होती हैं मतलब सेंडिंग और रिसीविंग नोड, उनका डाटा रेट बराबर होना चाहिए ताकि कोई उसको एक दूसरे को ओवरफ्लो ना कर सके। एरर डिटेक्शन की जाती है, अगर आपके पास कोई बिट लेवल एरर आता है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है, देन उसको करेक्ट भी किया जाता है। देन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन लिंक हो सकते हैं आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड में भी हो सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर भी हो सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स ये होता है कि दोनों बात कर सकते हैं, दोनों यूज़र बात कर सकते हैं मगर एक यूज़र एट टाइम पे बात करेगा। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो है आपके पास वॉकी टॉकी है। फुल डुप्लेक्स के अंदर जो है यूज़र्स एक ही टाइम पे बात भी कर सकते हैं, मतलब सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। और थर्ड टाइप जो होती है सिम्प्लेक्स होती है, वो जो इसको बेसिकली ब्रॉडकास्ट सिम्प्लेक्स जो होती है उसमें जो एग्जांपल ली जा सकती है वो आपके पास टीवी की होती है, मतलब एक ही यूज़र बात कर सकता है, दूसरे से उसको सुन सकता है, या जैसा रेडियो है। अच्छा, लिंक लेयर की अगर बात करें, लिंक लेयर कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, तो जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जैसे अगर आपका पीसी होगा तो उसमें कुछ इस तरह सा होगा, लैपटॉप होगा तो सॉरी अगर आपके पास वायरलेस कार्ड होगा तो आपके पास कुछ इस तरह से होगा, उसमें एंटीना लगा होगा। आजकल तो जैसे लैपटॉप्स के अंदर है वो एंटीना जो एम्बेडेड आता है, तो इंटरफेस कार्ड उसके अंदर लगा होता है। या जैसे केबल अगर आपने लगानी होगी तो उसका कार्ड इस तरह होता है। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ये आपके पास NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं इसको। उसके ऊपर आपके पास, या इसको हम लोग एडाप्टर भी कहते हैं, तो उसके ऊपर आपके पास लिंक लेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो आपके पास इसके अंदर चिप के अंदर CPU होता है, मेमोरी होती है, देन CPU को कंट्रोलर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, और CPU और मेमोरी को होस्ट बस या PCI बस के ऊपर कनेक्ट किया जाता है कंट्रोलर के साथ। देन उसके बाद फिजिकल लेयर होती है, और फिजिकल लेयर फिर ट्रांसमिटर मीडिया से कनेक्ट होती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस आपके पास बनता है, ये आपके पास कुछ था। अच्छा, एडाप्टर कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो जो सेंडिंग साइड होगी वो आपके पास इंकैप्सुलेट करेगी डाटा को, डाटाग्राम बनाएगी, फ्रेम बनाएगी डाटाग्राम से, उसमें एरर चेकिंग की बिट्स ऐड करेगी, फ्लो कंट्रोल और बाकी चीज़ें ऐड करके भेज देगी रिसीविंग के ऊपर। रिसीविंग साइड जो है उसको चेक करेगी एरर्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और अगर फिर एड्रेस वगैरह मैच करेगी, अगर मैच हो गया तो उसको रिसीव करके फिर आगे अपर लेयर के पास भेज दिया जाएगा। अच्छा, हमने बात की एरर डिटेक्शन की, यहाँ पे लिंक लेयर पे एरर डिटेक्शन होती है। तो एरर डिटेक्शन के लिए हमारे पास
कुछ बिट्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिट्स। ये रिडंडेंट बिट्स होती हैं। इधर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है EDC और D। EDC का मतलब है एरर डिटेक्शन करेक्शन बिट, और D का मतलब है डाटा जो कि एरर चेकिंग करने के बाद प्रोटेक्ट किया जाएगा। अच्छा, एरर डिटेक्शन जो है कि 100% रिलायबल नहीं है, इसमें हम लोग आगे देखेंगे कुछ मसले होते हैं। इसमें कुछ इसमें प्रोटोकॉल जो होते हैं वो कुछ एरर्स को मिस कर सकते हैं, मगर ऐसा बहुत कम होता है, फिर भी इसकी रिलायबिलिटी 100% नहीं है। तो क्या होता है कि आपके पास ये डाटा आया, ये डाटाग्राम है, और ये डाटाग्राम या ये जो डाटा है इसमें हमने एरर डिटेक्शन और करेक्शन कुछ बिट्स ऐड कर दी, वो भेज दी। तो अब हमारे पास ये जो सारी चीज़ बनी, ये आपके पास फ्रेम बन गया। ठीक है, इस फ्रेम को हमने भेज दिया फिज़िकल लिंक के ऊपर। देन ये सेंडर था, देन फिर रिसीवर ने रिसीव किया, उस एरर डिटेक्शन बिट्स को फिर चेक करेगा। अगर डिटेक्ट हो गया, अगर सारी बिट्स ओके हैं तो फिर ऊपर भेज दिया जाएगा डाटाग्राम, मतलब नेटवर्क लेयर के पास भेज दिया जाएगा। अगर एरर डिटेक्ट नहीं हुआ तो भेज दिया जाएगा, एरर डिटेक्ट हो गया है तो फिर इसको एरर को करेक्ट किया जाएगा। कैसे करते हैं? तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिंगल बिट पैरिटी और 2 डायमेंशनल बिट पैरिटी का। पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल बिट पैरिटी। सिंगल बिट पैरिटी या 2 डायमेंशनल जो पैरिटी है, या जिसको हम लोग बेसिकली पैरिटी चेकिंग जो है, ये आपके पास वही EDC बिट्स होती हैं। अब ये EDC बिट जिसको हम लोग पैरिटी बिट्स कहते हैं, ये क्या होती हैं? जो पैरिटी चेकिंग है या जो पैरिटी बिट है, ये हमारे पास 2 तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकती है, ऑड पैरिटी के थ्रू या इवन पैरिटी के थ्रू। ऑड पैरिटी, ये जो एग्जांपल है ये हम लोगों ने ऑड पैरिटी से की हुई है। ये किया जाता है पैरिटी के अंदर कि काउंट किया जाएगा इस डाटा बिट्स के अंदर नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, तो लेट्स काउंट। और हमने ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो पैरिटी बिट जो हमने यहाँ पे बनानी है, वो हम लोग इस केस के अंदर ऑड पैरिटी की बेस पर बना रहे हैं। तो हम लोग काउंट करेंगे। ऑड पैरिटी ये होती है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ बिट्स ऑड आ जाएंगी, 1 नंबर ऑफ़ 1 बिट, अगर आपके पास इधर आप बेसिकली काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ़ वंस आपके पास डाटा बिट्स के अंदर ऑड आ जाएंगे तो आप पैरिटी को कर देंगे 1। अगर वो इवन आ जाएंगे तो उस पैरिटी को कर देंगे 0। सिंगल बिट पैरिटी इस तरह होती है। तो इसमें काउंट करते हैं नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी है, 1 बिट्स कितनी है, तो 3 4 5 6 7 8 9। सो इट मीन्स ये ऑड पैरिटी, मतलब ऑड बिट्स हैं, ऑड नंबर ऑफ़ वंस हैं, तो इसका मतलब है इसकी पैरिटी 1 होगी। अगर ये इवन होती तो यहाँ हम लोग 0 कर देते हैं। सिंगल बिट पैरिटी है। सिंगल बिट पैरिटी आपके पास फेल भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर डाटा बड़ा होगा तो फिर उधर आपके पास मसला बनता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जो सिंगल बिट पैरिटी है वो सिर्फ डिटेक्ट करेगी एरर को, वो करेक्ट नहीं करती। तो करेक्शन को करने के लिए भी और डिटेक्शन करने के लिए भी फिर हमारे पास 2 डायमेंशनल या जिसको हम लोग कहते हैं कॉलम और रो बेस पैरिटी, या जिसको हम लोग मैट्रिक्स बेस पैरिटी भी कहते हैं, एरे बेस या मैट्रिक्स बेस पैरिटी कहते हैं, या जिसको हम लोग अपनी नेटवर्क की ज़बान में 2 डायमेंशनल बिट पैरिटी कहते हैं। इसमें डिटेक्ट भी किया जाता है एरर को और करेक्ट भी किया जाता है। ये भी जो इम्प्लीमेंट होती है आपके पास, हम लोग ऑड और इवन दोनों से कर सकते हैं। इस केस में हम लोग ऑड से कर रहे हैं। अच्छा जी, इस तरह किया जाता है कि ये आपके पास है जी डाटा, ठीक है। ये जो भी मैं रेड में बॉक्स जो बना रहा हूँ ये आपके पास डाटा बिट्स हैं। हर रो की पैरिटी होगी और हर कॉलम की पैरिटी होगी। तो पहले हम लोग कॉलम की पैरिटी करते हैं जी। ये पहला कॉलम है, मैं कॉलम भी आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन के लिए बना देता हूँ। इस कॉलम के अंदर नंबर ऑफ़ वंस काउंट करें, कितने हैं जी वंस? 1 2 1 है, तो इसका मतलब है ये इधर वंस जो है वो इवन है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमने इसके अगेंस्ट ये कॉलम के अंदर 0 प्लेस कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं पहली रो की। ये रो है, इसमें नंबर ऑफ़ वंस काउंट करें तो 1 2 3, तो इसका मतलब है ये ऑड वंस हैं। तो अब आप यहाँ पे इसको 1 कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे तो नेक्स्ट कॉलम आपके पास ये है, इसमें नंबर ऑफ़ वंस काउंट करेंगे तो फिर इवन है, तो फिर आपने इसको 0 कर दिया। अच्छा,
नेक्स्ट रो पे आएंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ वंस काउंट करेंगे तो इसमें 4 हैं वंस, तो ये भी इवन है, इसको आपने 0 कर दिया, पैरिटी 0 हो गई। नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो ऑड हैं, तो इसका मतलब है इसकी पैरिटी 1 होगी। और फिर आखिरी रो पे आएंगे तो इधर आपके पास नंबर ऑफ़ वंस जो वो ऑड हैं और इधर आपने इसकी पैरिटी 1 कर दी। फिर आपके पास आते हैं इस वाले कॉलम के ऊपर, तो इसमें नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो 2 हैं, तो इसकी पैरिटी आपने 0 कर दी। और फिर आखिरी वाले कॉलम पे आते हैं, इसमें 1 है, मतलब ऑड है आपके पास, तो इसकी पैरिटी आपने 1 कर दी। तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ वंस की बेस के ऊपर आपने एक पैरिटी बना ली। अच्छा, अभी तो ये आपके पास बात करते हैं, ये कॉलम्स की बन गई। अब इधर से आप इनकी भी काउंट करेंगे पैरिटी। ये अब आपके पास एक और रो बन गई और ये एक और कॉलम बन गया। तो इधर आपके पास इस रो की पैरिटी क्या है, वो आपके पास ये इवन है, तो ये 0, और इस कॉलम की भी वही है, तो इस वजह से आपने 0 यहाँ पे लिख कर दिया। अच्छा, अगर यही डेटा रिसीव हो जाए, ये आपके पास बेसिकली डेटा था और उसके अंदर आपने फिर ये वाली जो पोर्शन है इसको अब मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आपने पैरिटी बिट्स ऐड कर दी हैं, ठीक है, डेटा के अंदर। तो आपने हर रो की और हर कॉलम की पैरिटी बना दी है। अब अगर यही आपके पास डेटा रिसीव हो जाएगा तो वो फिर क्या करेगा, वो हर कॉलम की पैरिटी कैलकुलेट करेगा और रिसीव पैरिटी से कंपेयर करेगा, अगर वही बराबर है तो उसके अंदर कोई पैरिटी का डिफरेंस नहीं आता। अब हम लोग देखते हैं जी कि अगर वो एरर डिटेक्ट करता है देन एरर को करेक्ट कैसे करेगा। एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं जी, सपोज़ जो डाटा था उसके अंदर पहली रो के अंदर यही था, मगर सेकंड रो के अंदर डाटा जो है वो चेंज हो गया। अब क्या होगा, अगर ये डाटा रिसीव हुआ है तो उसके पहले कॉलम की और रो की पैरिटी कैलकुलेट की जाएगी। तो इस केस के अंदर ये 2 वंस हैं, तो इस कॉलम की पैरिटी जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह पहली रो के अंदर जो है वंस वो ऑड हैं, तो उसकी पैरिटी 1 हो जाएगी। इसी तरह सेकंड रो के अंदर जो वंस हैं वो इधर ऑड हैं, तो वो ऑड पैरिटी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए था, मगर रिसीव तो यहाँ पे 0 हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे इस रो के अंदर एरर है, तो इस रो को हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ये ग्रीन से मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम के ऊपर, तो इस कॉलम में नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, वो 1 है, ऑड है, तो इधर आपके पास 1 आना चाहिए था, तो इसका मतलब है इस रो के अंदर भी, इस कॉलम के अंदर भी मसला है। तो रो और कॉलम को जब आपने मिलाया तो जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो आपके पास ये 0 है। इसका मतलब है कि ये वो था जो कि चेंज हो गया, ये वो एरर है जो कि आपके पास चेंज हो गया। तो इधर से आपने डिटेक्ट कर लिया सिंगल बिट एरर, और इसको फिर आप करेक्ट कर लेंगे। क्यों, जिस ही आप इसको करेक्ट करेंगे तो आपके पास पैरिटी बाकी सारी बराबर हो जाएगी। तो इस तरह आपके पास पैरिटी से हम लोग 2 डायमेंशनल पैरिटी बिट से हम लोग एरर को चेक भी करते हैं और डिटेक्ट भी करते हैं, करेक्ट भी करते हैं और डिटेक्ट भी करते हैं। अच्छा, ये तो बात था पैरिटी बिट से हम लोग एरर का डिटेक्ट करना और करेक्ट करना। देन एक और तरीका है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, चेकसम का, जो कि बेसिकली क्या करता है, जो एरर्स को डिटेक्ट करता है, और ये आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर यूटिलाइज होता है, तो मुझे इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। देन जो आपके पास लिंक लेयर पे जो इम्प्लीमेंटेड एक कॉन्सेप्ट है वो आपके पास है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है वो एरर डिटेक्टिंग कोड से ज़्यादा पावरफुल है। ये ज़्यादा पावरफुल एक कोडिंग मेथड है जो कि आपके पास एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो डाटा बिट्स होंगी उसको हम लोग बाइनरी के अंदर ही देखेंगे, उसको हम लोग कहेंगे वो डी बिट्स हैं। डी बिट्स जो होंगी उसमें हम लोग एक पैटर्न, उन डी बिट्स की बेस के ऊपर हम लोग एक पैटर्न जनरेट करेंगे जो कि r+1 बिट का होगा। और वो पैटर्न जो जनरेट होगा वो इस तरह से पैटर्न जनरेट होगा कि हम लोग जो r बिट्स हैं, जो साइक्लिक रिडंडेंसी की बिट्स जो हैं, ये वाली बिट्स,
ये CRC बिट्स हैं, ये R बिट्स जो हैं, ये डाटा की बेस पर इस तरह से सिलेक्ट की जाएंगी कि D और R का अगर मॉडुलस बाय 2 लें तो वो G से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो R बिट्स ऐसी चूज़ की जाएंगी जो आपके पास D से अगर डिवाइड की जाएँ तो उनका मॉडुलस जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा G, मतलब 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। जो G है उसको हम लोग एग्जैक्टली 2 यहाँ पे लेते हैं, और रिसीवर जो है वो आप G को कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो रिसीवर होगा वो G को, उसको G का पता होगा, तो वो रिसीवर क्या करेगा, D और R को डिवाइड करेगा G से। अगर रिमाइंडर नहीं आया तो मतलब ज़ीरो रिमाइंडर आया तो मतलब एरर नहीं है, अगर ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आया तो मतलब एरर डिटेक्ट होएगा, और जैसे डिटेक्ट होगा तो जो एरर होगा वो R+1 बिट से लेस होगा। ये यूजली यूज़ किया जाता है वाईफाई के अंदर और ATMs के अंदर और ईथरनेट के अंदर। कैसे है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये डेटा बिट्स हैं, आपने R बिट्स ऐसे चूज़ किया, आपने R यहाँ पे रखा है 3, ठीक है। आपने सपोज़ ये 0 ऐसे रखा है कि ये जो है डेटा बिट्स जो D बिट्स हैं उसमें आपने XOR किया है 2 इंटू D इंटू 2R, इसको XOR किया R से और आपके पास NG आ गया। तो ये इस तरह से आप करके देख सकते हैं। तो ये जो R बिट्स हैं ये आपके पास वो बनेंगी जो कि आपके पास रिडंडेंट बिट्स होंगी, तो यहाँ पे आपने इधर CRC के अंदर ऐड करनी है, एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप G को ऐसा चूज़ करेंगे जो रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लिंक लेयर के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन।